کشمیر پل انڈر پاس کے باقی ماندہ فنڈز منظور ہوں گے۔ حسیب شہید اسپتال، سمن آباد جنرل اسپتال کی تکمیل ہوگی۔ اہم شاہراہیں بھی بنے گی۔ واسطہ کے منصوبوں کی سمری بھی تیار کر لی گئی۔ مکمل ڈیولپمنٹ پیکج کے لیے سفارشات حکومت کو بھجوا دی گئیں۔ بجٹ کی صورتحال کے بعد فیصل آباد منصوبے نامکمل تھے، مگر اب ایک بار پھر کشمیر پل انڈر پاس کے باقی ماندہ فنڈز حسیب شہید ہسپتال کو فعال کرنے اور سمن آباد جنرل ہسپتال کی تکمیل کے لیے 10 کروڑ روپے ملنے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے ریلوے امور MNA میاں فاروق حبیب نے بتایا کہ فیصل آباد کے ترقیاتی پیکج کے لیے بنائی گئی کمیٹی کھوڑیاوالا ٹو جڑاوالا اور KLM موٹر وے لنک سمیت اہم شاہراہیں بنانے، واسا کو چارج ہونے والی بجلی کا ٹیرف کم کرنے اور ڈومیسٹک ٹیرف میں اضافے کے لیے سفارشات بھجوا دی گئی ہیں۔ صوبائی حکومت کے جو ذمہ داران ہیں، جس میں فائنانس منسٹر ہیں، چیف سیکرٹری ہیں، جو سیکرٹری ہاؤسنگ ہوں گے، منسٹر ہاؤسنگ ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے۔ یہ تمام تر اپنی سفارشات تیار کر کے وزیر اعظم صاحب کی اپروول کروائیں گے اور فیصل آباد کو ایک بڑا ترقیاتی پیکج ملے گا۔ MNA میاں فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے فیصل آباد ڈیولپمنٹ پیکج حتمی منظوری کے بعد نافذ العمل ہوگا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ FDA سٹی میں انوویشن سٹی بنانے پر غور۔ DG FDA کہتے ہیں ایکس بلاک میں انوویشن سٹی پر منصوبہ بندی کا آغاز کیا جائے گا۔ DG FDA کی جانب سے FDA سٹی کو آباد کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ٹیکنو پارک کے آئیڈیا کے ساتھ FDA سٹی میں انوینشن سٹی بنانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انوینشن سٹی اپنی نوعیت کا منفرد اور جدید ٹیکسٹائل سے متعلقہ ہب ہوگا، جہاں فیڈ بیک میں لگنے والی جدید طرز کی صنعت کے فروغ کے لیے سروسز ہب بنے گا۔ ایک جگہ پہ ہاؤس ہو جائیں اور وہ سارے سروسز سیکٹر جو ہیں ہماری فیڈ میک اور علامہ اقبال انڈسٹریل زون کو سپورٹ پرووائڈ کریں گے، اور باقی آنے والے فیوچر میں بھی جو ڈیولپمنٹ کے لیے جو ایکٹیویٹی اور ایفرٹ ریکوائرڈ ہے وہ وہیں سے جنریٹ ہوگی، اور تمام انٹرپرینیورشپ کا ہب بن جائے گا یہ انوویشن سٹی۔ کئی کنال سے زائد اراضی پر پلازے کی تعمیر کر کے انڈسٹری سے متعلق فرمز کو کاروبار کا موقع دیا جائے گا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ الائڈ اسپتال فیصل آباد کے عملے کا خون کی بوتلیں خرد برد کرنے کا انکشاف ہوا۔ مریضوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں، جبکہ تیمارداروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ الائڈ اسپتال کے بلڈ بینک میں خون کی بوتلیں خرد برد ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ خون کی بوتلیں نہ ملنے سے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ شہری نے خون کی بوتلیں واپس نہ ملنے پر درخواست انتظامیہ کو جمع کرا دی۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ اس کی ہمشیرہ بن یونٹ میں زیر علاج ہے، اسے آئے روز خون کی بوتلیں لگتی ہیں، جس کا ایڈوانس دے دیا گیا ہے۔ عملے سے خون کی بوتلیں بارے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بوتلیں ضائع ہو چکی ہیں۔ عملے کی جانب سے 2 مرتبہ ایسا کرنے پر احتجاج کیا تو عملے نے 200 ml خون کی بوتل دے کر ترخواہ دیا۔ متاثرین نے ذمہ داروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انچارج بلڈ بینک ڈاکٹر حماد کا کہنا ہے کہ متاثرہ شہری کی جانب سے درخواست موصول ہو چکی ہے، واقعہ کی انکوائری کر رہے ہیں۔ انچارج بلڈ بینک ڈاکٹر حماد کا کہنا ہے کہ متاثرہ شہری سے زیادتی ثابت ہونے پر متعلقہ ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ چنیوٹ ریلوے انتظامیہ کی انوکھی منطق، شہر کے اہم مقامات پر ریلوے فاٹک بنانے کی بجائے ہیوی ٹریفک کا گزرنا بند کر دیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چنیوٹ ریلوے حکام کا انوکھا کارنامہ، سلارہ روڈ، عمر روڈ اور محلہ مصطفیٰ آباد سمیت شہر کے متعدد مقامات پر ریلوے فاٹک بنانے کی بجائے پولز لگا دیے۔ بیریئر سے ہیوی ٹریفک کی آمد و رفت شدید متاثر ہونے لگی۔ اس سے ہم اہل دیہات کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم ٹریکٹر ٹرالی وغیرہ لے کر یا دوسری کوئی بھی ہیوی جو ہے وہ چیزیں لے کر چارہ وغیرہ لے کر شہر جب ہمیں آنا پڑتا ہے، تو اگر پراپر یہاں پہ پھاٹک کا نظام ہو جسے بند اور کھولا جا سکے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ سلارہ روڈ اور عمر روڈ پر ہیوی ٹریفک کی بندش سے دیہی علاقوں کے مکینوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ شہریوں کو کہنا تھا کہ ریلوے انتظامیہ نے پولز لگا کر معاملات زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ پھاٹک کی وجہ سے، پھاٹک بنانے کی بجائے یہاں بیریئر لگا دیے گئے ہیں، جہاں اموات بہت زیادہ ہوتی ہیں، موٹر سائیکل، کاریں وغیرہ، وہ ان سے زیادہ جناب یہاں اموات ہوئی ہیں۔ ہیوی ٹریفک سے تو ایسی کوئی ہم نے آج تک نہیں سنی۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے پولز ہٹا کر ریلوے فاٹک بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ گزرنے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرامین علی زیب چوہان کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41 چنیوٹ۔ مسلم لیگ کاف کی قیادت نے 24 نیوز سے بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، مونس الہی نے کہا کہ 24 نیوز چینل کے لائسنس کی معطلی قابل افسوس اور بلا جواز ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیمرا چینل کا لائسنس فوری بحال کرے۔ پیمرا میڈیا کے ساتھ برداشت اور دوستانہ رویہ رکھے۔ اظہار رائے پر پابندی جمہوری حکومتوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ پیمرا کی اس اقدام کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اظہار رائے پر پابندی کے ساتھ ساتھ ملازمین کو بھی بے روزگار کرنے کا تاثر پیدا ہو رہا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کاف نے ہمیشہ آزاد میڈیا اور اظہار رائے کی آزادی کی عملی حمایت کی، ہمیشہ صحافت اور صحافیوں کا کھل کر ساتھ دیا۔
मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने 24 न्यूज़ से भरपूर इजहार यकजहती किया। चौधरी शुजात हुसैन, परवेज इलाही, मोहनिस इलाही ने कहा कि 24 न्यूज़ चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली काबिल अफसोस और बिला जवाज़ है। उन्होंने मुतालबा किया कि पैमरा चैनल का लाइसेंस फौरी बहाल करे। पैमरा मीडिया के साथ बर्दाश्त और दोस्ताना रवैया रखे। इजहार राय पर पाबंदी जमहूरी हुकूमतों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। पैमरा के इस इकदाम की हिमायत नहीं की जा सकती। उनका मजीद ये कहना था कि इजहार राय पर पाबंदी के साथ साथ मुलाजमीन को भी बेरोजगार करने का तासुर पैदा हो रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने हमेशा आज़ाद मीडिया और इजहार राय की आज़ादी की अमली हिमायत की, हमेशा सहाफत और सहाफियों का खुलकर साथ दिया। ट्वेंटी फोर न्यूज की बंदिश के खिलाफ सहाफी, वकला, ताजर और सियासी रहनुमा मैदान में आ गए। प्रेस क्लब से जिला काउंसिल चौक तक रैली निकाली। ये रिपोर्ट देखें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फैसलाबाद प्रेस क्लब, फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अरकान और सनती व तजारती तंजीमों के रहनुमाओं ने पैमरा की यकतरफा कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। मुजाहरीन ने 24 न्यूज का लाइसेंस फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। सदर फैसलाबाद प्रेस क्लब जफर डोगर का कहना था कि 24 न्यूज के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। सहाफियों को इससे बड़े एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। गैर कानूनी तौर पर यकतरफा कार्रवाई करते हुए पैमरा ने 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल किया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल किया जाए। सदर फैसलाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जी.ए. तनवीर ने पैमरा के इकदाम की मजम्मत की। मैं ये कहना चाहूंगा खान साहब के लिए कि हर्फ नाशनास जहां लफ्ज फहम हो, क्यों ज़ौक़े शेर दे के तमाशा किया मुझे, और इंशाअल्लाह 24 को जो है ये जो जंजीरें डाली गई हैं इनसे रिहाई मिलेगी। ग्रुप लीडर शाहद अली ने भी यकतरफा कार्रवाई पर पैमरा को आड़े हाथों लिया। 24 की बंदिश गैर कानूनी है और इस पर साफी बरादरी सरापा एहतजाज है। सेक्रेटरी फैसलाबाद प्रेस क्लब अली इशफाक हाशमी ने पैमरा के इकदाम को जालमाना करार देते हुए 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल करने का मुतालबा किया। अगर आप इक़्तिदार अपना पूरा करना चाहते हैं तो अवाम के मसाइल को सुनिए और अवाम के मसाइल लेकर उसकी निशानदेही करने वाले मीडिया को इज़हार राय की आज़ादी का मौका दीजिए। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम ने कहा कि 24 न्यूज को अवामी मसाइल उजागर करने और सच दिखाने की सजा दी जा रही है। अगर लोगों के साथ जुल्म होता है और उस जुल्म को आप आगे सामने लेके आते हैं तो मजलूम का साथ देना सबसे बड़ा जिहाद होता है। तो मैं समझता हूं कि 24 ने आज तक इस तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं की। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सेक्रेटरी महमूद आवान ने भी 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने की मजम्मत की। को जो भी जिम्मेदारान उनका तयन किया है, आपकी मदद की है, तो हम जो है वो इस पैमरा के इस कदम का दाम का जो है वो मजम्मत करते हैं। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला असलम भल्ली ने भी पैमरा के इस इकदाम की शदीद मजम्मत की। जब मीडिया की आवाज़ दबाएंगे और आपके सामने हकीकत सुनने का हौसला आप में नहीं होगा तो फिर इसका यकीनन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। चेयरमैन पावर लूम्स ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने कहा कि 24 न्यूज को मजदूरों, ताजरों और सनतकारों के मसाइल उजागर करने पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। पैमरा का यकतरफा और जालमाना फैसला था जिसके खिलाफ एहतजाज के लिए आज ना सिर्फ फैसलाबाद के सहाफी बरादरी आई है बल्कि फैसलाबाद के मजहबी रहनुमा, फैसलाबाद के ताजर, फैसलाबाद के सनतकार, हर मकतबा फिक्र से लोग आए हैं। जमात इस्लामी फैसलाबाद के नायब अमीर राना अदनान ने भी पैमरा को अड़े हाथों लिया। देखें खान साहब, जब आपकी करप्शन बेनकाब होगी तो आप फंसेंगे और इंशाअल्लाह ये ओछे हथकंडे आपके काम नहीं आएंगे। अंजुमन तलबा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तैयब सियालवी ने भी 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने की मजम्मत की। हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं, तलबा बरादरी आपके साथ है। आज़ादी सहाफ़त के लिए हम इस हवाले से हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करेंगे। खातून सहाफ़ी शाइस्ता शेख ने भी ख्यालात का इजहार किया। हकाइक को मंजर आम पर लाते हैं लेकिन हकाइक जो है वो बड़े तलक होते हैं, लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट हम अपना जो है जो हमने अहद किया होता है उसको फुलफिल करते हैं। हकाइक जो चाहे वो तलक ही सही हम इन मंजर आम पर लाते हैं। सहाफ़ियों, सनती व तजारती तंजीमों के अहदेदारों, डिस्ट्रिक्ट बार और सियासी जमातों के रहनुमाओं समेत हर शोबा जिंदगी से वाबस्ता अफराद ने 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत की और लाइसेंस फौरी तौर पर बहाल करने का मुतालबा किया। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास और मोहम्मद वकास के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। पैमरा का आज़ादी सहाफत पर बड़ा वार, 24 न्यूज चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब सिनियोट में सहाफी बरादरी ने पैमरा के इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया और चैनल बहाल करने की अपील की।
पैमरा ने चैनल 24 का लाइसेंस की कैटेगरी पर एतराज करते हुए चैनल का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। चैनल के मौक़िफ़ को नजरअंदाज करके एक तरफा कार्रवाई की गई। पैमरा के इस इकदाम के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज है। चिन्योट में भी सहाफ़ी बरादरी की जानिब से पैमरा के इस इकदाम की भरपूर मजम्मत की गई। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सदर चौधरी शाहिद महमूद समेत दीगर सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़त के खिलाफ इंतहाई घिनौनी साजिश की गई है। मैं चेयरमैन पैमरा से ये पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि 24 न्यूज़ को सच दिखाने पर जिस तरीके से बंदिश उसकी की गई है गैर कानूनी, उसको फिलफौर खोला जाए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट के दीगर मेंबर्स की जानिब से भी इस इकदाम को गैर कानूनी करार दिया गया। 24 जो है टीवी चैनल, उसकी बंदिश के खिलाफ पाकिस्तान मीडिया कौंसिल की तरफ से ज़िलाई प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान को ऐना दिखाता है तो उस वक्त उस चैनल पर बंदिश लगा दी जाती है पैमरा की जानिब से। गवर्नमेंट मसाइल पैदा कर रही है, अगर वो मसाइल हम उजागर कर रहे हैं और उनको दिखा रहे हैं तो ये कदम लगाए जा रहे हैं। 24 न्यूज़ की बंदिश न सिर्फ हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश है बल्कि सहाफ़ियों का मुआशी इस्तेहसाल करने की भी साजिश है। सहाफ़ी बरादरी ने आला हुकाम से चैनल बहाल करने की अपील की। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ फसीला, सिटी 41 चिन्योट। 24 न्यूज़ की बंदिश पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक पेज पर फौरी तौर पर चैनल की बहाली का मुतालबा किया। अरकान असम्बली ने आज़ाद मीडिया पर हर किस्म की पाबंदी को मुस्तरद कर दिया। हुकूमती सफ़ों से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक MNA डॉक्टर निसार अहमद जट ने कहा कि मीडिया पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। मुतल्लिका फोरम पर तमाम तकनीकी एतराज़ दूर होने चाहिए। इस तरह धौंस धांधली से हुकूमत की बदनामी होगी। मीडिया अपना काम कर रही है, हम यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव को जो है वो फोकस नहीं कर रहे। पैमरा के तहत अगर कोई टीवी चैनल उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, अगर वो उन्हें किसी तरीके से बंद कर रहा है तो वो मेरा ख्याल है कि ओपन फोरम अवेलेबल हैं। और अगर कोई ज़्यादती पैमरा कर रहा है तो अदलिया का निज़ाम भी बिल्कुल है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी वजह से जानबूझकर किसी अजियत या किसी परेशानी की वजह से, परेशान करने की वजह से कोई चैनल बंद किया जा रहा है तो इस पर हम सब इंशाअल्लाह ताला इस बात पर जो है अपने वज़ीर मुमलिकत से रुजू भी करेंगे। दूसरी जानिब साबिक लीगी MNA अली गौहर बलोच ने कहा कि 24 न्यूज़ ने हमेशा सच दिखाया जो कि मौजूदा हुकूमत को बिल्कुल भी पसंद नहीं। मीडिया पर पाबंदियों की हर शोबे की जानिब से मजम्मत की जा रही है। 24 और उससे रिलेटेड जो भी लोकल चैनल्स हैं उनको बंद किया गया है। ये मैं समझता हूँ कि ये हुकूमती और रियासती दहशतगर्दी है और ये हर उस आवाज़ को दबाने की ये हुकूमत और सिलेक्टेड न्याजी की गवर्नमेंट कोशिश करती है जो भी आवाज़ हक के लिए उठती है। अरकान पार्लियामेंट ने फौरी तौर पर 24 न्यूज़ की नशरियात बहाल करने का मुतालबा किया ताकि सच सामने आ सके। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। न्यूज अपडेट्स आपने जानी। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में बादल बरस पड़े हैं। ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। स्याह बादलों की वजह से दिन में रात हो गई। बारिश से बिजली की फराहमी भी शदीद मुतासिर हुई। शदीद गर्मी के बाद आंधी ने फैसलाबाद का रुख किया। झक्कड़ चले तो साथ ही सुरमई बादलों ने आसमान पर कब्जा जमाया। बादल गरजे, चमके और फिर बरस पड़े। तेज हवाओं और रिमझिम से गर्मी को ब्रेक लग गई। तेज हवाओं और बारिश से फैसलाबाद का तरसीली निजाम भी मुतासर हुआ। 47 फीडर्स ट्रिप कर गए। बेशतर देही और शहरी इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी रही। आंधी और बारिश के सामने फेस्को के फीडर्स बेबस हो गए, जिससे शहरी परेशानी में मुब्तला रहे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद की चक नंबर 216 रेबे मोहम्मद वाला की मकीन बिजली बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 4 रोज से बिजली बंद है। फेस्को अफसरान और अमले ने चुप साध रखी है। जड़ावाला रोड से मुलीका चक नंबर 216 रेबे मोहम्मद वाला में ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस बिजली ऐसे गई कि 4 रोज बाद भी वापस न आई। अहले इलाका ने फेस्को हुक्काम और अमले की गफलत पर शदीद एहतजाज किया। दिहाड़ी ला के उन्हें तो कोई बत्ती होंगी कोई सया जाता नहीं साढ़े को। लिहाजा तुम अगर बिजली नहीं सही करनी तुम खंबे पट लो, तारा पट लो ताकि सानू पता लग जाए कि बिजली है कोई नहीं, असी अपना गुजारा कर लिए। मुजाहिरीन कहते हैं कि मुतादिद बार शिकायत की मगर सुनवाई न हुई। शहरी शदीद गर्मी से निढाल हैं। मुजाहिरीन ने कहा कि फेस्को हुकाम ने ताहाल बिजली की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए। SDO बिजली बहाल करने और ट्रांसफार्मर की तब्दीली के लिए 2 लाख रुपए का मुतालबा कर रहा है। तो पूरी होती नहीं, उनको 2 लाख कहाँ से करके दें। अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम अब तो कुछ आदमी हैं
हम पूरा मल्ला लेके रोड पे जाएंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। इंसान तो इंसान रह गए, जानवर प्यास से मर रहे हैं, उनको चारा काटने के लिए वो बत्ती नहीं है, उसकी परेशानी है। बच्चों का हाल देखो ये क्या हो गया है। मुजाहिरीन कहते हैं कि सीईओ फेस्को अमले की गफलत और एसडीओ के खिलाफ फौरी नोटिस लें और बिजली बहाल करवाएं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जुल्करनैन ताहिर, फैसलाबाद। अहमदपुर सियाल के इलाके चक 2/2L में 4 रोज से बिजली गायब है। फेस्को 4 दिन के बाद भी खराब ट्रांसफार्मर को ठीक ना करा सका। रिहायशी सरापा एहतजाज। वापडा हुकाम की गफलत के बायस इनाम नगर के मकीन बिजली से महरूम है। वापडा अफसरान के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अहमदपुर सियाल के चक 2/2L में खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत न होने पर मकीन फेस्को के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतादिद बार फेस्को सब डिवीजन गढ़ महाराजा को इतला दी लेकिन सुनवाई न हो सकी। फेस्को एहलकारों की जानिब से ट्रांसफार्मर ठीक करने के बदले पैसों का तकाजा किया जा रहा है। चनाब नगर के इलाके खचियां, आसमाबाद, दारुल हसन, नासराबाद, शकूराबाद और दारुल यमन के मकीनों ने वापडा के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जायद बिल वसूल करने के बावजूद वापडा एहलकार बिजली की खराबी दूर नहीं कर सके। अक्सर इलाकों के सिर्फ जंपर्स और ट्रांसफार्मर्स खराब हैं, लेकिन लाइन स्टाफ की सुस्ती की वजह से अवाम बिजली से महरूम हो गए हैं। फेस्को जंग की गफलत के बायस मोहल्ला अलाहाबाद के मकीनों पर मौत के साए मंडाने लगे। मानसून अलर्ट के बाद भी बिजली के लटकते तारों और टेढ़े खंभों को दुरुस्त नहीं किया जा सका। बारिशों की सूरत में जानी और माली नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया। फेस्को जंग की बेहिसी के बाइस मोहल्ला इलाहाबाद के मकीन खौफ रास में मुब्तला हैं। मानसून अलर्ट के बाद भी बिजली की लटकती तारों और टेढ़े खंभों की दुरुस्ती का अमल मुकम्मल न किया जा सका, जिसके बाइस बारिशों की सूरत में जानी और माली नुकसान का अंदेशा पैदा हो गया है। जी सर, ये आपके सामने ये सब तारें लटकी हुई हैं और इधर मानसून की हवाएं, बारिशें और जानी माल का खतरा भी हो सकता है। ये हुकूमत से गुजारिश है कि ये हमारा जो सिलसिला इसको जल्द से जल्द हल किया। इलाका में सीवरेज मसाइल के बाइस भी अहले इलाका शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना था कि चंद मिलीलीटर बारिश के बाद सीवरेज का निजाम मुकम्मल बंद हो जाता है, जिससे गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं। बहुत अरसा हो गया यहाँ पे कोई बंदा नहीं आता, कोई काम नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा वैसा, यानी कि पानी का अब बारिशें होंगी, पानी का बहुत ज्यादा मसला है, हर गली में पानी रहता है। अहले इलाका ने फेस्को हुकाम और जिले इंतजामिया से सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में फसलों की जोनिंग खराब हो गई। शुगर मिल्स लगने की वजह से तांदेवाला समेत कॉटन की बेल्ट बुरी तरह मुतासिर। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खाम माल कम होने के खदशात पैदा होने लगे। रवां पर 60 लाख एकड़ की जगह सिर्फ 40 लाख एकड़ कपास काश्त हुई है, जिस वजह से कपास की कमी का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ह है कि कपास का बरामदात में 60-70% तक शेयर होता है। कॉटन जो है ये 60% जो हमारी बरामदात हैं वो कॉटन की वजह से होती हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये रॉ मटीरियल मुहैया करती है। ज़राई माहिरीन कहते हैं पहले टेक्सटाइल सेक्टर को खाम माल आसानी से मुहैया हो जाता था, अब इसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीक खालिद महमूद का कहना था कि शुगर मिल्स और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से और जोनिंग ना होने की वजह से या शुगर मिल्स जो है वो कॉटन वाले एरिया में जाने की वजह से, तो ये फसल जो है इसकी जो है ना प्रोडक्शन जो है या पैदावार और इसकी जो काश्त है वो कम हो गई है। काश्तकारों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि कपास की फसल को मुनाफा बख्श बनाने के लिए इसकी इमदादी कीमत तय करनी बहुत जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना के बायस हुकूमत की जानिब से तमाम शोबों को रिलीफ फराहम किया गया, जबकि दूसरी जानिब किसानों को आबियाना की फीस दोगुना करके फौरी जमा कराने की हिदायत कर दी गई। शोबे ज़राअत से वाबस्ता अफराद में परेशानी की लहर दौड़ गई। हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल न होने से ज़राअत से वाबस्ता अफराद मुश्किलात का शिकार होने लगे। साबिक कैबिनेट डॉक्टर निसार अहमद जट ने आबियाना बढ़ाने पर शदीद तनकीद की है। हमें अफसोस इस बात का यह है कि जब हमने नंबरदारान साहिबान से ये बात पूछी कि जी आबियाना आपको किसने कहा है, किसके नोटिफिकेशन से आप ये वसूल कर रहे हैं, तो हमें जवाब आया कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कहा गया कि आपने ये डबल से ट्रिपल वसूल करना है। ज़राई शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि हुकूमत को लाजमी तौर पर आबियाना कम करना होगा। रहनुमा PTI डॉक्टर निसार अहमद जट का कहना है कि इस इशू के मुतल्लिका प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट करेंगे ताकि किसानों की मुश्किलात कम की जा सके। उस्मान बुज़दार साहब तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि बुज़दार साहब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में महंगाई का कंट्रोल करना, जितनी जो हमारे सीड के हवाले से, हमारी खाद के हवाले से आप जो इतने मामला को लुक आफ्टर कर रहे हैं, इस बात का नोटिस ज़रूर लें कि ये किस फोरम ने आबियाना बढ़ाया है और उस पर नोटिफिकेशन जो है वो मंजर आम पर क्यों नहीं लेकर आए।
शोबा ज़राअत से वाबस्ता अफराद का मौक़िफ़ है कि एक जानिब हुकूमत ज़राअत को तरक्की देना चाहती है, मगर दूसरी तरफ टैक्सेस में कमी की बजाय इजाफा हैरान कुन अमल है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंसदाद टिड्डी दल के मौजू पर एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, चेयरमैन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल डॉक्टर अजीम, चेयरमैन शुबा एंटमोलॉजी डॉक्टर मंसूरुल हसन, डॉक्टर आमिर रसूल ने काश्तकारों को टिड्डी दल से बचाव बारे आगाही दी। रिपोर्ट देखिए जहांगीर अशरफ की। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि टिड्डी दल माजी के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस टिड्डी दल ने रवां साल ज्यादा नुकसान किया। अब जो टिड्डी दल आ रहा है और जो स्वाम आ रहे हैं, ये इस तरह के पहले हमने नहीं देखे। ये बहुत बड़ी तादाद में, और जो कहते हैं ना कि ये असल जो इस पे असरात हुए हैं कि नंबर क्यों बढ़ा है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो पूरी दुनिया में शोर है कि जी मौसमियाती जो तब्दीली आई है उसकी वजह से। चेयरमैन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल डॉक्टर अजीम का कहना था कि हुकूमत ने टिड्डी दल के हमले को भी इमरजेंसी और हंगामी सूरत हाल के तौर पर डील किया। एक्शन हमने लिए हैं, तो जो यहाँ रियलाइजेशन है ये बहुत अर्ली हुई है, बहुत अर्ली महसूस किया गया कि यूनिवर्सिटी को एक लीडिंग रोल प्ले करना है, और ये कर रही है। ज़राई माहिर डॉक्टर आमिर रसूल का कहना था कि मादा टिड्डी दल 1000 तक अंडे दे सकती है। टिड्डी दल के अंडे देने वाली जगहों को घर पे या हल चलाकर तल्फ किया जा सकता है। बैठे हुए झुंड को आग लगाकर भी तल्फ किया जा सकता है। ये एक बहुत ही इजी वे है, क्योंकि इमोबाइल हैं एग्स, हमें इनको सिर्फ लोकेट करना पड़ेगा। जैसे आपको पीछे मैंने दिखाया कि सुराख नज़र आते हैं, और एक एक स्क्वायर मीटर में हज़ारों सुराख आपको मिलेंगे, और अगर लोकेट कर लें, प्रॉपर सर्वेलेंस हो, तो फर्स्ट ऑपरेशन हमारा यहीं से स्टार्ट हो जाता है। हमें इसके पीछे भागने की इतनी ज़रूरत नहीं है। माहिरीन ने बताया कि तलेर, तीतर, कौवे और दीगर परिंदे भी टिड्डी दल को खा जाते हैं। बायोपेस्टिसाइड से भी टिड्डी दल को कंट्रोल किया जा सकता है। टिड्डी दल फसल पर बैठ जाए तो तजवीज़ करदा स्प्रे से भी मारा जा सकता है। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कमिश्नर फैसलाबाद इशरत अली की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। चारों इजला के महकमे माल से मुतल्लिका अमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली, एडिशनल कमिश्नर ज़राए वाजिद अली, अयूब खान, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फजल रबी, असिस्टेंट कमिश्नर सैयद अयूब बखारी, उमर मकबूल, फैसल सुल्तान, उसामा शारवान नियाजी, इम्तियाज बेग, डॉक्टर जुनैरा आफ्ताब, जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू मलिक राशिद के अलावा दीगर इजला के डिप्टी कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर को रेवेन्यू अमूर से मुतालिक डायरेक्टरी को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजी को वागुजार और ज़राई जमीनों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ महकमों की इमारतों का स्टेटस चेक किया जाए। कमिश्नर ने कहा कि रेवेन्यू अमूर से मुतल्लिका चेक लिस्ट बनाकर उसके मुताबिक टास्क की अंजाम दही की जाए। उन्होंने कहा कि कारपोरेशन से मुतल्लिका पटवारियों से मीटिंग करके रिकॉर्ड और रेवेन्यू से मुतल्लिक मालूमात हासिल की जाए। कमिश्नर ने कहा कि 2 दिन बाद दोबारा इजलास मुनक्किद करके कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। इसी तांदेवाला उसामा शरून नियासी ने ड्यूटी से गफलत बरतने वाले 8 पटवारियों को मुअत्तल किया। उनके खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला उसामा शारून ने 8 पटवारियों को नाकिस कारकर्दगी और शहरियों की शिकायत पर मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले पटवारियों में मोहम्मद शकील, मुमताज हुसैन, नासिर अली, मोहम्मद इसहाक, गुलाम मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद सईद शामिल हैं। इसी उसामा शारून ने मुअत्तल होने वाले पटवारियों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चिन्योट में कमरों का अकाल पड़ गया। इंग्लिश ब्रांच, डायरी ब्रांच, कॉलोनी ब्रांच और ट्रांसपोर्ट ब्रांच का दफ्तरी रिकॉर्ड खुले आसमान तले रख दिया गया। कमरों की कमी के बायस अहम रिकॉर्ड जाया होने का खदशा बढ़ गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट अपने ही दफ्तर की हालत ना बदल सके। कमरों की कमी हुई तो सरकारी अफसरान और क्लर्कों ने दफ्तरी फाइलों समेत कीमती रिकॉर्ड खुले आसमान तले रख दिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंग्लिश ब्रांच, डायरी ब्रांच, कॉलोनी ब्रांच और ट्रांसपोर्ट ब्रांच का दफ्तरी रिकॉर्ड जाया होने का खदशा बढ़ गया है। शहरी कमरों के बाहर पड़ी फाइलों को देखकर जिला इंतजामिया की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दिए। शहरियों ने हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज से कमरों की कमी को पूरा करने का मुतालबा किया है ताकि कीमती रिकॉर्ड को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन अली ज़ेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चिन्योट। झंग की धजी रोड की हालत ना बदल सकी। तमाम बाजारों को जाने वाली सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। ये रिपोर्ट देखें।
जंग के गुंजान आबाद इलाके सुल्तान वाला मोहल्ला से मुलिका दजी रोड की हालत बदल न सकी। 5 से ज्यादा मोहल्ले और बाजारों को मिलाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ताजिर और मकामी अफराद टूटी सड़क के बायस मुश्किलात का शिकार हैं। तहम इंतजामिया की जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। शहरियों का कहना था कि अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार रोड की हालत रोज बरोज अबतर होती चली जा रही है। अवामी नुमाइंदों ने दजी रोड की टूट फूट को नजरअंदाज कर दिया है। गुजरना मुश्किल है, यहाँ से मोहल्लेदार रहने वाले परेशान हुए पड़े हैं। सड़क सारी टूटी पड़ी, काफी अरसे से बचपन से देखे जा रहा है, यहाँ से टूटी हुई है सड़क। शहरियों ने हुकूमत से सड़क की तामीर और मुरम्मत करने का मुतालबा किया है ताकि दरपेश मसाइल का खात्मा मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। म्यूनसिपल कमेटी चिन्योट ने ईद कुर्बा पर आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए। बल्दी अफसरान ने हथरेड़ियाँ, कंटेनर्स, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, लोडर रिक्शे, बैग, मास्क और टोकरियों की खरीदारी के लिए सिफारिशात हुकूमत को भेज दी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चिन्योट ने ईद कुर्बान से कबल सफाई समेत आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए इंतजाम शुरू कर दिए। शहर में 150 से ज्यादा मुलाजमीन सफाई और आलाइशों को ठिकाना लगाने के लिए ड्यूटी अंजाम देंगे। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। ईद कुर्बा पर मवेशी मंडियों के क़याम का जायजा लिया गया। डीसी ने असिस्टेंट कमिश्नर्स और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मवेशी मंडियों के लिए जगहों की निशानदही करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मवेशी मंडियां शहरी हुदूद में नहीं लगेंगी। मंडियों में मास्क, ग्लव्स और समाजी फासला जरूरी होगा, जबकि ऑनलाइन और इज्तिमाई कुर्बानी की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि मवेशी मंडियों में लोगों को SOPs पर अमल दरामद का पाबंद बनाने के लिए टाइगर फोर्स के रजाकारों की खिदमात हासिल की जाएंगी। डिवीजन भर में कोरोना के हमले जारी हैं। जिला फैसलाबाद में मुतासरा अफराद की तादाद 5026 हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद जिला भर में वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 5026 हो गई है। इसके अलावा वायरस के बायस 172 मरीज जाम बहक भी हो चुके हैं। चिन्योट जिला में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 216 हो गई। 70 अफराद ने खुद को घर में करंतना किया हुआ है, जबकि 6 अफराद आइसोलेशन सेंटर में जेर इलाज है। महकमा सेहत के मुताबिक जिले में 141 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देकर सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि वायरस से 5 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। जंग जिले में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 332 तक जा पहुंची, जबकि अब तक 246 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक जिले भर में 6 अफराद वायरस के बायस जाँ बहक हुए। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का अनोखा कारनामा, हश्तुम के खाली रिजल्ट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। तलबा को अपना रोल नंबर दर्ज करके रिजल्ट कार्ड डाउनलोड करने और प्रिंट करने की हिदायत कर दी। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के तहत हार्ड कॉपी में तलबा को हश्तम का रिजल्ट कार्ड तालीमी इदारों में भिजवाने की बजाय रिजल्ट कार्ड की सॉफ्ट कॉपी पैक की वेबसाइट पर फराहम कर दी गई। शामिल करेंगे फैसलाबाद डिवीजन से कुछ मुख्तसर और अहम खबरें सिटी न्यूज राउंड अप में। तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी पंजाब पैरामेडिक्स और लेबर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का एहतजाज। चेयरमैन लेबर फेडरेशन मियां महबूब हुसैन ने शिरकत की। बढ़ती महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया। तांदियावाला के मोहल्ला तौहीदपुरा और जिना आबादी में सीवरेज सिस्टम खराब, गलियों में सीवरेज का पानी जमा रहने लगा। मकीन इंतजामिया के खिलाफ सराफा एहतजाज। सीवरेज सिस्टम ठीक करने का मुतालबा किया। चेयरमैन मार्केट कमेटी जड़ावाला मिर्जा अरशद बेग की शहरियों से मुलाकात। शहरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि शहर को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब बुखारी ने ताजिर तंजीमों के साथ इजलास किया। 8 बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया। नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर जुनेरा आफ्ताब ने रूरल हेल्थ सेंटर लुंडियावाला का अचानक दौरा किया। कोरोना SOPs और सर्विसेज की फराहमी के अमल का तफसीली जायजा भी लिया। फैसलाबाद में डेंगू के हमले का खतरा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डेंगू टीमों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया। CO हेल्थ चिन्योट ने अचानक THQ अस्पताल का दौरा किया। सर्जिकल वार्ड, फीमेल वार्ड समेत आला इन्हिसार यूनिट में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कुसूरी ने तांदियावाला का दौरा किया। जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन की सरगर्मियों का जायजा लिया। पंजाब भर में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम में फैसलाबाद 6 नंबर पर। CO एजुकेशन अली अहमद सियान और ADC हफीफा शाजिया की जानिब से फोकल पर्सन डिप्टी एजुकेशन बल्कीस रेहाना को मुबारकबाद दी गई। इंतजामिया की अदम तौजही के बायस पाकिस्तान का मैनचेस्टर वुमेन ग्राउंड से महरूम हो गया। खवातीन खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने में परेशानी का सामना। खवातीन खिलाड़ियों ने हुकूमत से ग्राउंड मुहैया करने का मुतालबा किया है।
हफ्ते में 5 दिन काम और 2 दिन आराम। टोबा टैक्सी में लॉकडाउन पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। छोटी बड़ी मार्केटें और कारोबारी मराकज़ बंद हैं। किराना, बेकरी, दूध और मेडिकल स्टोर खुले रखने की इजाज़त है। हुकूमत की जानिब से 5 दिन कारोबार जबकि 2 दिन लॉकडाउन पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। लॉकडाउन के बायस शहर की तमाम छोटी बड़ी दुकानें बंद हैं। ज़िले इंतजामिया हुकूमती फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए कोशा है। इंतजामिया ने मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया और लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। इंतजामिया का कहना है कि सिर्फ किराना स्टोर, दूध, दही और मेडिकल स्टोर खुले रखने की इजाजत है। तमाम दुकानदार SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। इंतजामिया का कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने किए जा रहे हैं, जबकि शहरी कोरोना को शिकस्त देने के लिए घरों में महफूज रहने को तरजीह दे रहे हैं। कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। अहमदपुर सियाल में 30 साल कबल तामीर की जाने वाली सब जेल गढ़ महाराजा की इमारत हाल फहाल न हो सकी। ये रिपोर्ट देखें। अहमदपुर सियाल में 30 साल कबल तामीर की जाने वाली सब जेल गढ़ महाराजा की इमारत खस्ता हाली का शिकार होने लगी है, जबकि लाखों रुपए का कीमती सामान भी गायब हो चुका है। शहरियों का कहना है कि अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा के कैदियों के लिए बनाए जाने वाली इमारत को फॉल किया जाए। अहमदपुर सियाल और गढ़ महाराजा के कैदियों को यहाँ मुंतकिल किया जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट जेल पर बोझ कम हो सके। मकामी कैदियों को अहमदपुर सियाल ले जाने में अखराजात से भी बचा जा सकेगा। करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई और इसको फाल नहीं किया गया। तो मेरी आला हुकाम से ये अपील है कि अगर इस बिल्डिंग को फाल कर दिया जाए और इस यहाँ पे जो हमारे कैदी हम अहमदपुर सियाल से जंग जाते हैं तो उनको भी यहाँ पे आसानी हो जाएगी। शहरियों का कहना था कि कुछ अरसा कबल सब जेल गढ़ महाराजा की इस इमारत में मकतब स्कूल खोला गया था जो फाल ना हो सका। अब खाली इमारत में नशइयों ने डेरे डाल रखे हैं। ये जो बिल्डिंग है ये खंडरात का मंजर पेश कर रही है, तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि जो ये सब जेल को जो है ये इसको मुरम्मत करवाया जाए और यहाँ पर कैदियों को रखा जाए। और जो जंग से जब कैदी लेके यहाँ आते हैं अहमदपुर सियाल में तो कैदियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि लाखों रुपए की मालियत से बनाए जाने वाली इमारत को किसी महकमे के सपोर्ट करके फॉल किया जाए। कैमरा टीम के हमरा अमार यासिर, श्री 41, अहमदपुर सियाल। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झंग को कोरोना इमरजेंसी के मुतासरा वकला की माली इमदाद के लिए इमदादी रकम फराहम कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब बार कौंसिल की जानिब से कोरोना इमरजेंसी के मुतासिर वकला की माली इमदाद के लिए इमदादी रकम फराहम कर दी गई। इस मौके पर वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल अकरम खाकसार और मेंबर पंजाब बार मखदूम मजीद हुसैन ने चेक तकसीम किए। जंग बार के अलावा शोरकोट बार और अहमदपुर सियाल के अहदेदारों को भी इमदादी चेक फराहम किए गए। पंजाब बार कौंसिल के अहदेदारों का कहना था कि इमदादी रकूम से प्रैक्टिस मुतासिर होने वाले मुस्तक वकला की इमदाद की जाएगी। 14,40,000 रुपया जंग बार को है, 3,40,000 रुपया शोरकोट बार को और 1 लाख रुपया अहमदपुर सियाल के बार को। बहुत बड़ी काविश है, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं। वकला भी जो है ये बात वही है कि ऊँट के मुंह में जीरा है। मजीद हम कहते हैं कि अगर कहीं से कोई फंड्स अवेलेबल हो तो वो डिजर्विंग वकला में वो भी तकसीम किए जाए। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट अली रजा तिरमजी ने इमदादी चेक लिया। सेक्रेटरी जनरल शोरकोट बार एडवोकेट राशिद चौधरी समेत अहमदपुर सियाल बार के अहदेदारान भी मौजूद थे। सदर एडवोकेट अली रजा तिरमजी का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट बार और पंजाब बार की जानिब से कोरोना इमरजेंसी के मुतासिर अफराद की माली मदद की जाएगी। कोशिश करेंगे कि डिजर्विंग लोगों तक ये रकूम पहुँचे और ताकि जाहिर है ये सही मानों में कंपनसेशन तो नहीं है इन हालात की जो तारीख में पहली दफ़ा जिनका हम सामना कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन पंजाब बार अकरम खाकसार का कहना था कि मजीद फंड्स इकट्ठा करके तमाम बार्स के वकला को इस मुश्किल घड़ी से निकाला जाएगा, जबकि इमदादी रकूम की फराहमी में मेरिट और शफाफियत को भी मद्देनजर रखा जाएगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।